HALOGEN-Zs, वेलकम टू माई चैनल HALOGEN-Z। आज हम शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी। पहला, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच heat is needed or required to carry out the reaction are called endothermic reactions. Students, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हीट कर दें कैल्शियम कार्बोनेट को, प्रोडक्ट बनेगा calcium oxide, carbon dioxide. This is an example of endothermic reaction. If we heat ferrous sulfate, it gives ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. It is again an example of endothermic reaction. If we take lead nitrate, heat it, हम हीट के रूप में ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो के ऊपर। इट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये सारे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जब हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं तो आइदर वी मेंशन द हीट ऑन द एरो और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, writing the heat or mentioning the heat energy on left hand side. We can write the same reaction as well. Here CaCO3 arrow CaO plus CO2. If I shift this heat from here to this side, right hand side, it becomes minus heat. तो कभी ऐसे भी लिखा हो with negative sign and the heat is written, लेकिन ये product side है. So this is representation of an endothermic reaction. The reaction in which heat energy is absorbed or required are called endothermic reactions. Students, endothermic reaction के बाद second type है exothermic reaction. What is exothermic reaction, students? ऐसा reaction, so the reaction in which heat is evolved are called exothermic reactions. एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, सो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में निकलती है बहुत सारी हीट एंड एज वेल एज लाइट। इफ वी टेक नाइट्रोजन treated with hydrogen, it forms ammonia, but this is again an example of exothermic reactions. This is reversible reactions. जब भी दो एरो दिख जाएं आपको, हाफ एरो, ऐसे रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, और जहां सिंगल एरो दिखे, that is irreversible reactions. Let's see third one. Whenever methane is a main constituent of natural gas. Whenever it burns in presence of oxygen, C gives C plus O2 CO2 and H and O gives H2O. This is again an example of exothermic reactions. So we can say in short, burning of fuel is an example of exothermic reaction. One next example is respiration. Respiration is opposite of photosynthesis. So here in respiration, energy is released in the form of ATP and some heat is lost in the form of heat.
So all these are example of exothermic reactions. So endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed or required, whereas exothermic reactions are those in which heat is evolved. So student, if heat energy is mentioned in a chemical equation, then we call those equations as thermochemical equation. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है हीट इवॉल्व्ड, एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव. स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है और वो है केमिकल इक्वेशन. सवाल उठता है केमिकल इक्वेशन क्या है? It is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulas of reactants and products. एक बार फिर से, the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulas of reactant and product is called a chemical equation. देखते हैं types of chemical equation, और first type है unbalanced केमिकल इक्वेशन, और दूसरा नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. यहां देखें, हाइड्रोजन के दो एटम्स, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है वाटर, इसमें हाइड्रोजन दो. इट इज सेम ऑन बोथ साइड्स. लेट अस सी द सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन के एटम है दो और राइट साइड में है सिर्फ एक. इसका मतलब दो एलिमेंट है टोटल, जिसमें से हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इट इज नॉट सेम. सो वी कैन से इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट. यदि हम दोनों को ट्रीट करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में देंगे सिल्वर. सी, जिंक एटम लेफ्ट हैंड साइड 1, right hand side zinc 1, here silver 1, right hand side it is 1, and here nitrogen 1, here it is nitrogen is 2, here oxygen on 3, and right hand side हमको दिखता है कि oxygen 3. तो ये देखते हैं कि number of atom of each element is not same on both sides. तो हम ये कह सकते हैं if the number of atom of each element is not same on both sides, उस type of chemical equation को कहते हैं unbalanced chemical equation. Students, unbalanced chemical equation के पास देखते हैं balanced chemical equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on left hand side and right hand side of a chemical equation are equal. So once again the definition: the chemical equation in which the number of atoms of each element are same on reactant side and product side are called balanced chemical equation. तो सवाल उठता है, why do we balance a chemical equation? ऐसी क्या जरूरत थी कि unbalanced equation को हमें बैलेंस करना पड़ा? और the reason is to satisfy law of conservation of mass, because during a chemical reaction matter can neither be created nor be destroyed. देखें एक बार, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेकर रिएक्ट करें तो ये बनाता है वाटर. लेकिन लेट्स सी इट हियर, या हाइड्रोजन के दो एटम यहां दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम, राइट हैंड साइड देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन. So during a chemical reaction matter can neither be created nor be destroyed. तो ये एक example है unbalanced chemical equation का. तो let's see, this is unbalanced
chemical equation. So to satisfy law of conservation of mass, that during a reaction matter can neither be created nor be destroyed, but the total mass of product is always equal to the total mass of the reactant. तो देखें बैलेंस कैसे करते हैं. तो आपको बैलेंसिंग करनी है तो इक्वेशन को दोबारा से लिखें. दिस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम एक और नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन. जब आपको इसे बैलेंस करना हो तो वो हाउ टू बैलेंस इट, उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करें, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा. तो लेट्स सी हियर, यहां 2 एटम, यहां भी 2, इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे वाटर. अब वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन. तो देखें जो ज्यादा है उसे पहले बैलेंस करें और जिसका नंबर कम है उसे बाद में. तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे. यहां 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड 2. व्हाट वी सी कि दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम नंबर सेम है. और अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन यहां पर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड 2 है. तो टू बैलेंस इट हम यहां 2 पीछे नहीं लिख सकते, वरना वाटर विल टर्न इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन, तो मैंने राइट हैंड साइड वाटर के आगे 2 लगा दिया, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स. 1 ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल में, तो 2 ऑक्सीजन होंगी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में. तो वी सी ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमने देखा हाइड्रोजन एटम हो गए 4, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल में 4. तो व्हाट वी डू ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हम हाइड्रोजन के आगे लिख देंगे 2. ये हो गया 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन, यहां भी 4, इसमें ऑक्सीजन 2 और यहां भी 2. व्हाट वी सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर equal on left hand side as well as right hand side. So this is an example of now a balanced equation. But why we are balancing? As I told you, to satisfy law of conservation of mass. फिर एक देखते हैं, नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia. चेक करें ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड. नाइट्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट साइड में सिर्फ 1, दैट इज नॉट इक्वल. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, हाइड्रोजन में 3, दे आर नॉट इक्वल. व्हाट वी सी नाइट्रोजन और ना हाइड्रोजन दोनों ही बैलेंस नहीं है. तो हाउ डू वी बैलेंस? जैसा कि आपको बताया, उस मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करें जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हैं. तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? अमोनिया. अमोनिया के अंदर 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. देखिए दोनों में ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन. तो सबसे पहले बैलेंस करें हाइड्रोजन को. बेटा यहां पर हाइड्रोजन 3 है, यहां 2 है, तो एलसीएम ले लें. 2 3 जा 6, तो आगे लिख दें 2. तो दिस इज 2 अमोनिया मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन, तो 2 में हो गए 2 3 जा 6. तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो गए 6. और यहां हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो आगे लिख दीजिए 3. सो दिस इज 6 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2. नाउ अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज टर्न इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. Student, this method of balancing a chemical equation is class 10th, is called hit and trial method. यानी अपना एफर्ट्स लगाएं, मेहनत करें and you will be able to balance equation. ये बुक में एक मेथड दे जरूर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं आप इसे ओबे करें. If you become perfect, you keep practicing it. कोई रूल की जरूरत नहीं है. I am showing it to you. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दोबारा लिखा अमोनिया. बुक का रूल फॉलो नहीं किया, आपका मन किया मैं बैलेंस करना चाहता हूं नाइट्रोजन. यहां 2 नाइट्रोजन है, यहां 1 है. डायरेक्टली बैलेंस करने के लिए आगे क्या लिख दे? 2 नाइट्रोजन. नाउ लेट्स सी, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन हो गए 6 और ये लिख दीजिए 3. ये हो गई बैलेंसिंग. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. बस आपको बुक में ये दिखा रखा है हाउ टू प्रोसीड. अदरवाइज यू जस्ट मेक एन एफर्ट, बी सिंसियर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड मेक अ सिंसियर एफर्ट. यू कैन इजीली बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन एंड दिस मेथड वी कॉल इट एज हिट एंड ट्रायल मेथड. 11th क्लास में आप 2 मेथड पढ़ोगे, हाफ रिएक्शन मेथड, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. जो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड. कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं.
जिंक प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बनाता है ZnSO4 प्लस H2। एग्जाम में आपको ये इक्वेशन मिली और बोला बैलेंस कीजिए। बच्चे ने ट्राई किया, Zn एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, यहां ऑक्सीजन 4, यहां 4। व्हाट वी सी, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये केमिस्ट्री में ही पॉसिबल है कि क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन वही आंसर है, बिकॉज द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। कभी ऐसा ना करिएगा कि आप सब जगह क्या लगा दें बैलेंसिंग करने में, हर जगह 2। दिस इज नो नीड, जस्ट चेक द नंबर ऑफ एटम। लगे आपको कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है, इसका मतलब वो इक्वेशन गिवन आपको है, यू राइट एज इट इज एंड दिस विल बिकम द आंसर। तो जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है वही आंसर है, क्योंकि इक्वेशन इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिए, it gives calcium oxide plus carbon dioxide. The equation is already balanced. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. आप देखेंगे sulfur same 1 1, oxygen 2 here 2. It is already balanced. So this is how we balance a chemical equation. Students, this is all in this lecture. Like, share and subscribe. If you have any queries, you can comment it. And see you in the next lecture.